Okay, so my name is Kanika Jindal and I'll be teaching you financial institutions and market. Okay, in the last class I have explained the basics about financial system and I have also discussed about the syllabus. Okay, so most of you were not there in the last class, so I'm just giving you a review of the last class and then we'll start with the new content. So unit 1 is about financial system. As you can see on the screen, so what is the meaning of financial system? Can anyone answer? What is financial system? What is the meaning of financial system? No? No idea? Okay. So it is a system that allows the exchange of funds between financial market participants such as lenders, investors and borrowers. So it is a system which allows the investors to have money, to get money from the market, or it is a medium which channelizes the money of the savers to the investors. Okay, there are few people in the market who saves and there are people who require money. So when you are saving some money and you are keeping it in your wardrobe, it is of no use, it will not grow. So what do you do for that? You invest. Okay, and the people who need money don't know that you have spare money, you are the saver. So what do they do? Financial system is an intermediary for such people who are saving money and the people who want money. Am I clear? Okay, so it is a system that allows the exchange of funds between financial market participants such as lenders जो पैसा देते हैं, ठीक है, जो लोन पे पैसा देते हैं, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास सेविंग्स है, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? बिकॉज यू वांट सम रिटर्न्स. ओके, एंड द बोरोअर्स, मैं एक बिजनेस करती हूँ, मुझे अपने बिजनेस को चलाने के लिए आई नीड सम फंड्स, तो मैं क्या करूँगी? आई विल बोरो सम फंड्स, तो आई एम अ बोरोअर. तो ऐसे लोगों के लिए जो इंटरमीडियरी है वो है फाइनेंशियल सिस्टम. Is that okay? Next is financial system operate at national and global levels. So it is not something which is only operating at national level, but it is operating at global level. How? Because there is the involvement of foreign exchange also. Okay, we are transferring money outside the national borders. So it is at global level. Is it fine? Okay. Next is, it is a financial system is a set of global, regional or firm specific institutions and practices used to facilitate the exchange of funds. So there are many institutions which are a part of financial system. Our banks, insurance, everything they are a part of financial system. Okay, please write your attendance everyone on the sheet. Okay. Next is financial system can be organized using market principles, central planning or a hybrid of both. So financial system organized भी होता है, ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी होता है. इसके भी दो कैटेगरीज हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, अभी आपको जो समझना है सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि उसी के सब कंपोनेंट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, देन अ फाइनेंशियल सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस एंड प्रोसेसेस. तो ये कैसे कॉम्बिनेशन है? पीपल कौन कौन इन्वॉल्व है? बोरोअर्स एंड लेंडर्स. इंस्टीट्यूशंस, अगर इंश्योरेंस इन्वॉल्व, यस, बैंक्स इन्वॉल्व हैं, इंश्योरेंस इन्वॉल्व है, इंश्योरेंस कंपनीज इन्वॉल्व हैं, म्यूचुअल फंड्स इन्वॉल्व हैं, सब इन्वॉल्व हैं इसमें, तो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं. देन बिजनेसेस, जो भी बिजनेस हाउसेज हैं वो भी क्या कर रहे हैं? वो वो अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं या फिर वो कुछ बोरो कर रहे हैं, तो वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें. एंड प्रोसेसेस क्या? फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं, ठीक है, वो भी इसी का पार्ट है, तो प्रोसेसेस भी इसमें इन्वॉल्व है. Is that okay? If you have any doubt, you can ask. Is it okay till here? Okay. Next is formal and informal financial sector.
So in simple terms, formal finance is financing capital that has been sourced from banks and other financial intermediaries. तो फॉर्मल फाइनेंस का क्या मतलब है, जो एक सोर्स से आ रहा है, एक वैलिडेटेड सोर्स से आ रहा है, वो बैंक्स हो सकते हैं, वो कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हो सकता है, ठीक है, जो एक वैलिडेटेड सोर्स है. Whereas informal finance is the capital which has been sourced from friends, family, relatives or private money lenders. जो एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, वैलिडेटेड सोर्स नहीं है, जिसका यही काम नहीं है मनी लेंड करना. आपने अपने फ्रेंड से कुछ बोरो करा तो वो एक क्या है, वो एक फॉर्मल फाइनेंस नहीं है. इट इज़ नॉट एन फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर. आपने अपने रिलेटिव से पैसा लिया तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट क्या है, जैसे आपने बैंक से पैसा लिया, ओके, या फिर आपने किसी एक रिकग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से पैसा लिया, ठीक है. तो ये डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में. इज इट क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस? कैन एनीवन एक्सप्लेन? आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. क्या होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में डिफरेंस? फॉर्मल और इनफॉर्मल फाइनेंस में क्या डिफरेंस है? फॉर्मल फाइनेंस में हम किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से फंड्स लेते हैं, जबकि इनफॉर्मल में कोई भी हम किसी से भी ले सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अदर देन रिकग्नाइज्ड हम किसी से भी वो ले सकते हैं. यस, राइट. ओके, प्लीज़ बी अटेंटिव. ओके, सब ब्रेकफास्ट करके आए हैं ना, है ना? तो प्लीज़ बी अटेंटिव. आपको एक सेकेंड पहले जो मैंने बात बताई, अगर इफ़ यू कैन नॉट रिमेंबर दैट थिंग, देन हाउ विल यू रिमेंबर एवरीथिंग विच आई एम टीचिंग यू? ओके, प्लीज़ बी अटेंटिव. देन वी हैव, अब हम थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ें तो फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर इज अ सेक्शन ऑफ अ इकोनॉमी मेड अप ऑफ firms and institutions, made up of, I can't write, okay, made up of firms and institutions that provide financial services to commercial and retail customers. तो यहाँ पे जो हमारे की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में वी हैव फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस जो क्या करते हैं, विच प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू कमर्शियल एंड रिटेल कस्टमर्स. ये चीज़ आपको याद रखनी है. ओके, जस्ट रिमेंबर द कीवर्ड्स. देन दिस सेक्टर कंप्राइजेज अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड रियल एस्टेट फर्म्स. सो ये क्या है? ये फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर के पार्टिसिपेंट्स हैं. ओके, देन वी हैव इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर. It is basically the companies and individuals seeking higher return. अब यहाँ पे आप क्यों जाते हो? आप क्यों नहीं जा रहे फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में? बिकॉज हेयर यू आर सीकिंग हायर रिटर्न. आपने अपने किसी फ्रेंड से लोन लिया या फिर आपने अपने किसी फ्रेंड को लोन दिया. आपने अगर बैंक पे पैसा डाला होता तो बैंक आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे रहा है. लेकिन जब आप अपने फ्रेंड को पैसा दे रहे हो तो हो सकता है आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो. तो यहाँ पे आप क्यों जा रहे हो इनफॉर्मल सेक्टर में? बिकॉज यू विश टू हैव हायर रिटर्न्स. इट इज़ रिस्कियर. ये रिस्की है एज कंपेयर टू बैंक, बट हेयर यू गेट हायर रिटर्न्स. ओके, interest on bank deposits are able to earn higher returns by placing funds in the informal financial sector. तो यहाँ पे क्या रिवॉर्ड होता है? यहाँ पे रिवॉर्ड होता है दैट यू अर्न हायर रिटर्न्स एज कंपेयर टू द फॉर्मल सेक्टर. पर डिफरेंस क्या है? इट इज़ रिस्कियर. वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है. वहाँ पे तो बैंक है. फॉर्मल सेक्टर में तो इट इज़ बैंक. यू नो दैट बैंक विल रीपे, बैंक विल पे यू टाइमली इंटरेस्ट. बट इनफॉर्मल सेक्टर में जो आपका फ्रेंड है वो आप, इट्स अप टू यू. ओके, डिफॉल्ट के चांसेस हैं वहाँ पे. ठीक है. दिस सेक्टर does act as an alternative intermediary to banks and other formal institutions. So ये क्या है? एक ऑल्टरनेटिव है फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर का. ठीक है, जिनको लगता है मुझे बैंक में पैसा नहीं डालना, आई वॉन्ट हायर रिटर्न्स, आई कैन टेक सम रिस्क,
तो वो क्या करेंगे, वो किसी नोन टू को लैंड कर देंगे, या हो सकता है स्ट्रेंजर्स को भी लैंड करें. इट्स अप टू यू हाउ मच रिस्क आर यू विलिंग टू टेक. इज दैट क्लियर? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ठीक है, यू शुड नो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके, नेक्स्ट, components of formal financial system. अब financial system consists of individuals जिसमें borrowers हैं, lenders हैं, institutions हैं like bank, stock exchanges, insurance companies, और वो क्या कर रहे हैं, there is transfer of funds. ठीक है, ये जितने भी चीज़ें participants involved हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, there is transfer of funds और transfer of services. Okay, it gives investors the ability to grow their wealth and assets, thus contributing to economic development. तो ये क्या कर रहा है, इतने सारे जो participants involved हैं उनके बीच में जो flow of exchange of funds हो रहा है, exchange of services हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, it is helping the investors to grow their wealth. How? कैसे ग्रो कर रहे हैं इन्वेस्टर्स अपनी वेल्थ को? आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, आपके पास स्पेयर पैसा है, आपने उसको इन्वेस्ट करा, तो व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग? टू गेट सम रिटर्न्स. ओके, सो आपकी वेल्थ बढ़ रही है उससे. आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो क्या माइंडसेट होता है आपकी, क्या विश होती है, दैट आई विल गेट सम रिटर्न्स, मेरी जो वेल्थ है वो बढ़ेगी. अननेसेसरी तो आप किसी को पैसा नहीं दोगे ना, एक्सचेंज में आप यू विल गेट समथिंग, यू विल गेट सम रिटर्न्स. सो यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम इन्वेस्टर्स गेट द एबिलिटी टू ग्रो देयर वेल्थ. वो अपने वेल्थ ग्रो कर सकते हैं थ्रू रिटर्न्स, अपने एसेट्स ग्रो कर सकते हैं. एंड दस जब किसी की वेल्थ इंक्रीज होती है एज इन्वेस्टर्स, अगर सब इन्वेस्ट करेंगे, उनकी वेल्थ इंक्रीज होगी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, तो इट विल लेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द country. Is that clear? So there are several financial system components to ensure a smooth transition of funds between lenders, borrowers and investors. So कुछ components हैं जो ensure करते हैं कि एक formal financial system में जो transition of funds हो रहा है, जो transfer of exchange of funds हो रहा है, वो smoothly हो. तो वो क्या क्या होते हैं? Financial institutions, financial markets, financial instruments, financial services and currency, that is the money. Okay, so these are the participants or the components of formal financial system. ठीक है, इनके बिना smooth transition और exchange of funds is not possible. Okay, okay, now first is, अब हमें ये जो सारे components हैं उनको बहुत डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हुए? दे आर बेसिकली इंटरमीडियरीज इंटरमीडियरीज बिटवीन द लेंडर. लेंडर कौन होता है? हु इज द लेंडर? हु लेंड्स मनी. ठीक है, एंड द बोरोअर. हु इज द बोरोअर? हु बोरोज मनी, हु नीड्स मनी. ओके, सो ये क्या है? लेंडर और बोरोअर के बीच का इंटरमीडियरी होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो आपको देखना है. इस इंक्लूड्स बैंक, जिसमें कमर्शियल बैंक, रिटेल बैंक, सेंट्रल बैंक सब आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज और ब्रोकरेज फर्म्स, ये सब इंक्लूड होते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल मार्केट्स. तो सेकेंड कंपोनेंट क्या था उसका, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का? फाइनेंशियल मार्केट्स. फाइनेंशियल मार्केट क्या है? इट इज़ अ प्लेस, ठीक है, वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ एसेट्स अकर्स बिटवीन बोरोअर्स एंड लेंडर्स. अब जो एसेट्स हैं यहाँ पे वो क्या हैं? वो कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है, दे आर द फाइनेंशियल एसेट्स. वो फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स. ठीक है, दीज आर द फाइनेंशियल एसेट्स. ठीक है, तो अगर इनको आपको खरीदना है या आपको सेल करना है तो आप कहाँ जाते हो? आप जाते हो फाइनेंशियल मार्केट. आप कहाँ जाते हो? स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज.
ओके, इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स होता है. ओके, सो फाइनेंशियल मार्केट्स help businesses to grow and expand by allowing investors to contribute capital. अब यहाँ पे क्या होता है, कैसे हेल्प करता है फाइनेंशियल मार्केट एक बिजनेस को ग्रो करने में, एक्सपैंड करने में. एक बिजनेस है, उसको मनी चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना दे नीड सम फंड्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने शेयर्स इशू करे. कहाँ पे इशू करते हैं शेयर्स? यस, ठीक है, अपने शेयर्स इशू करे. शेयर्स इशू जब करेंगे तो एवरीवन, आपने कुछ शेयर करे, आपने कुछ शेयर खरीदे, तो उससे क्या होगा कि आपने पैसा इन्वेस्ट करा उस कंपनी में, ठीक है, और आपको क्या मिल गया, आपको एक ओनरशिप राइट मिल गया वहाँ पे, आप वहाँ के शेयर होल्डर बन गए, ठीक है. तो कंपनी के पास पैसा आ गया, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो गई, आपने इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है. बाय अलाउइंग इन्वेस्टर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, तो इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, अपनी कैपिटल को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस तरह से. इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन कंपनी स्टॉक विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ इट प्रोड्यूसिंग अ रिटर्न इन द फ्यूचर. जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा वहाँ से, राइट, आई विल गेट सम रिटर्न. एज अ बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट, it can then pass on the surplus to the investors. तो जब बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है जहाँ पे आपने, और उसके बाद जहाँ पे आपने इन्वेस्ट करा है, तो वो क्या करेगा, वो जो उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड्स. इज इट क्लियर? ठीक है, ओके. थर्ड इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हमने बात कर ली, फाइनेंशियल मार्केट की बात कर ली, अब क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, दे इनेबल इंडिविजुअल्स टू ट्रेड विद इन फाइनेंशियल मार्केट. तो फाइनेंशियल मार्केट में अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें क्या चाहिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए. ये क्या हो सकते हैं, दे इंक्लूड कैश, शेयर्स, bonds, options and futures which are derivatives. Okay, then financial services. Financial services provide investors a way of managing assets and offer protection against systematic risk. अब ये जो term है systematic risk, इसका क्या मतलब है? What is systematic risk? Have you heard this term? अच्छा, रिस्क क्या होता है? What is risk? Risk is basically the uncertainty. Okay, फ्यूचर में मैंने किसी को पैसा दिया, ठीक है, और देयर इज अनसर्टेनिटी दैट आई विल गेट इट बैक विद इंटरेस्ट. सो ये क्या है, इट्स अ रिस्क. ओके, तो रिस्क इज द अनसर्टेनिटी कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो होगा. ओके, रिस्क को हम फाइनेंशियल टर्म्स में दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, ठीक है. वो ऐसे रीजंस की वजह से होता है विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड यू कैन नॉट डाइवर्सिफाई और कंट्रोल दैट टाइप ऑफ रिस्क, ठीक है. और जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है हम उसको डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बोलते हैं, या फिर हम उसको किसी लेवल पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो हेल्प करती है इन्वेस्टर्स को अपने एसेट्स को ऐसे मैनेज करने में कि जो उनका सिस्टमैटिक रिस्क है वो एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट येस दे कैन मैनेज इट इन अ गुड मैनर. ओके, तो फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या रोल है कि वो हेल्प करे इन्वेस्टर्स को इस तरह से मैनेज करने में अपने एसेट्स कि उनका जो सिस्टमैटिक रिस्क है which cannot be controlled, but they help them to manage it in an efficient manner. ठीक है. These also ensure individuals have the appropriate amount of capital in the most efficient investments to promote growth. अब फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी इंश्योर करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट इस तरह से हो कि उनकी ग्रोथ हो, ठीक है. दिस इज द एम. Banks, insurance companies, investment services would be considered financial services.
ठीक है. Then the fifth component is currency, which is the money. It is a form of payment to exchange products, services and investments, and it holds value to society. Is it clear till here? कोई doubt है किसी को? Okay. Now, functions of financial system, it allows its participants to prosper and reap the benefits. It also helps in borrowing and lending when needed. इसका क्या मतलब है कि there is no time limit, कोई ऐसा specific time नहीं है जब आप जाके borrow कर सकते हो या अपना money lend कर सकते हो. It is possible any time. ठीक है. तो फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जब मर्जी पैसा बोरो कर सकते हो, जब मर्जी पैसा लेंड कर सकते हो. ठीक है. whenever it is required. In simple words, it will circulate the funds to different parts of an economy. मतलब जहाँ पे ज़्यादा पैसा है वहाँ से ये हेल्प करता है सर्कुलेट करने में मनी जहाँ पे रिक्वायर्ड है. ठीक है. Here are some of the financial system functions. तो सबसे पहला फंक्शन है पेमेंट फंक्शन, देन वी हैव सेविंग्स, देन वी हैव लिक्विडिटी, देन वी हैव रिस्क मैनेजमेंट एंड देन गवर्नमेंट पॉलिसी. ठीक है. पेमेंट सिस्टम. सो पेमेंट सिस्टम क्या होता है? एन एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम अलाउज बिजनेसेस एंड मर्चेंट्स टू कलेक्ट मनी इन एक्सचेंज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. आपने किसी से कोई प्रोडक्ट खरीदा तो आप उसको बदले में पेमेंट कर रहे हो. ठीक है. तो ये जो फंक्शन है उसको बोलते हैं हम पेमेंट सिस्टम. तो बिजनेस को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है इन ल्यू ऑफ द प्रोडक्ट दे आर ऑफरिंग यू और द सर्विस विच दे आर गिविंग टू यू. ओके. पेमेंट कैन बी मेड विथ कैश. अब पेमेंट जो हो रही है वो कैसे हो सकती है? कैश से, चेक से, क्रेडिट कार्ड से, और अब तो हमारे पास डिजिटल मनी का भी ऑप्शन है. ठीक है. सो ये क्या है? ये सब इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस टू पे. अगर हमारे पास ये ऑप्शंस ही नहीं होंगे जैसे पहले होता था तो क्या होता था उस टाइम पे जब मनी नहीं थी? यस. तब क्या होता था? बार्टर होता था, है ना. सोचो कितना डिफिकल्ट था कि किसी चीज़ की वैल्यू डिसाइड करना, है ना. तो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ ईजियर बिकॉज वी हैव द पेमेंट ऑप्शंस. ओके. नेक्स्ट इज सेविंग्स. Public savings allow individuals and businesses to invest in a range of investments and see them grow over time. तो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को जब इन्वेस्ट करना है पैसा, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. देन यू डिसाइड आउट ऑफ दोज ऑप्शंस कि विच इज़ बेटर फॉर मी. ठीक है. मेरा मोटिव क्या है इन्वेस्टमेंट का, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करती हूँ कि मेरे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट है. ओके. सो आई हैव ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सेविंग फंक्शन क्या बोलता है कि मुझे अगर अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना है तो आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू इन्वेस्ट. बोरोअर्स कैन यूज देम टू फंड न्यू प्रोजेक्ट्स एंड इंक्रीज फ्यूचर कैश फ्लो. अब अगर बोरोअर हूँ मैं तो मेरे को अगर मैंने किसी से पैसा लिया है तो आई एम गिविंग देम सम इंटरेस्ट, बट उसके बदले जो मेरे कैश की रिक्वायरमेंट है, मुझे एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जिससे मेरा कैश ग्रो हो रहा है, मेरी ग्रोथ हो रही है ना, वो मेरे लिए पॉसिबल है. ओके. नेक्स्ट इज लिक्विडिटी. द फाइनेंशियल मार्केट्स गिव इन्वेस्टर्स द एबिलिटी टू रिड्यूस द सिस्टमैटिक रिस्क बाय प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी. लिक्विडिटी क्या होता है? यस. कन्वर्जन इनटू कैश. तो लिक्विडिटी क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती है कि मेरे पास सपोज कुछ फाइनेंशियल एसेट्स हैं और मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं उसको कभी भी बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ. दैट इज़ लिक्विडिटी. ठीक है. जब मेरी कैश की रिक्वायरमेंट है तो मैंने अपने फाइनेंशियल एसेट्स को बेचा और कैश ले लिया. ओके. नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट. इट प्रोटेक्ट्स investors from various financial risks through insurances and other types of contracts. So बहुत सारे टाइप के रिस्क होते हैं. ठीक है. तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क से. ठीक है. कैसे प्रोटेक्ट करता है? थ्रू इंश्योरेंस. इंश्योरेंस में आप देखेंगे बहुत सारे टाइप के रिस्क होते हैं, है ना. तो इंश्योरेंस क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें? रिस्क मैनेजमेंट.
अगर इन केस कोई रिस्क आ जाता है ऐसा तो हम उस वक्त कैसे डील करेंगे, तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो रही है, थ्रू इंश्योरेंस. ओके. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी. Government attempts to stabilize or regulate an economy by implementing specific policies to deal with inflation, unemployment and interest rate. अब क्या होता है कि फाइनेंशियल सिस्टम अपने हिसाब से वर्क कर रहा है, बट कभी कभी ऐसा होगा कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी, कभी ऐसा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी या इंटरेस्ट रेट बार बार अप डाउन हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है एंड दे मेक सच पॉलिसीज to stabilize such issues. Okay, is that okay? Yes, yes. Okay. Next is elements of a financial system. Elements of a financial system make up several key parts of an economy. It involves all the businesses, regulations and systems that handle money in that economy. तो क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें, बिजनेस है, रेगुलेशन है और सारे फाइनेंशियल सिस्टम हैं. देन फाइनेंशियल सिस्टम में सीम कॉम्प्लिकेटेड. द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम आर रेगुलर पार्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ व्हेन वर्किंग वेल. तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वी कैन नॉट कंट्रोल इट. ठीक है, तो ये हम भी एक इसका पार्ट है. ठीक है, कहीं ना कहीं हम भी इसका पार्ट है. एवरी इंडिविजुअल, एवरी फर्म इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. सो जब ये पर ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसी सिचुएशंस भी होती है कि ये जब ये इम्पैक्ट करता है तो सबको एक साथ इम्पैक्ट करता है. ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करेगा, इट इम्पैक्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल. ओके. नेक्स्ट इज 6 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम आर लेंडर्स, बोरोअर्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो अभी हमने डिस्कस करे हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स, money creation and price discovery. These financial system components keep money flowing between people and businesses in an organized manner. तो ये जो components है क्या help कर रहे हैं, ये flow of money रखते हैं. ठीक है, between people and businesses और एक regularized और एक organized manner में. ठीक है. Okay. Now lenders and borrowers. Lenders loan money to borrowers. Although people can be lenders on a private basis, lenders in a financial system are typically financial institutions. तो lenders कौन होते हैं, जो money lend करते हैं. ठीक है, जिनको पैसे की ज़रूरत है, उनको पैसा उधार पे दे रहे हैं. अब वैसे तो एक इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई लेंडर हो सकता है, आपने किसी को पैसे दिए तो आप भी लेंडर हो गए, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम में, एक ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम में लेंडर कौन होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके. अ होम बायर ऑफन फाइनेंसेस द परचेजेस ऑफ देयर होम थ्रू अ मॉर्गेज लोन मेकिंग देम अ बोरोअर. अब किसी को घर खरीदना है तो वो क्या करेगा, वो अपने परचेजेस को कैसे, किस लोन के थ्रू मैनेज करता है. घर खरीदना, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मैंने क्या करा, एक मॉर्गेज लोन ले लिया. मॉर्गेज लोन क्या होता है कि कुछ गिरवी रख के, है ना, मैंने लोन ले लिया. ठीक है, और फिर मैं क्या बन गई, आई बिकम अ बोरोअर. ओके, जब मैंने लोन लिया है चाहे वो किसी भी फॉर्म हो, देन आई एम अ बोरोअर. बिजनेसेस ऑल्सो टेक आउट लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑपरेट करने होते हैं, तो उनको भी लोन की ज़रूरत पड़ती है. तो वो कहाँ से लोन्स लेते हैं, दे टेक लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स. ठीक है. One characteristic of a good financial system is regulation surrounding lending. जो एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम है उसका क्या क्राइटेरिया, उसका क्राइटेरिया ये है कि वो जो लेंडिंग सिस्टम है, पूरा लेंडिंग फंक्शन है, उसके आसपास रेगुलेशंस होती हैं. ठीक है, सब कुछ डिफाइंड होता है. आप अगर बैंक से कोई लोन लेते हैं तो क्या बैंक ऐसे ही आपको लोन दे देता है, नहीं. दे चेक एवरीथिंग, योर हिस्ट्री, योर सिबिल स्कोर, योर पेपर्स, वो सब डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं. वो क्या चेक करते हैं उसमें, व्हाट डू दे चेक, exactly, do they check that do you have the capacity to repay that amount which you are taking as loan. है ना, बैंक के पास खुद का पैसा नहीं है,
आपने बैंक में पैसा डाला तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद किसी और ने बैंक से पैसा मांगा तो बैंक उससे इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो यही बिजनेस है बैंक का। अब बैंक नहीं चाहता कि जिसको वो लोन दे रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट में हो, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। इवन इफ़ यू लेंड समवन मनी तो यू ऑल्सो चेक कि यू ऑल्सो नो दैट विल दैट पर्सन बी एबल टू रीपे दैट और नॉट। ऐसे ही थोड़ी ना आप किसी को दे दोगे पैसा, है ना। आप पहले मेक श्योर करते हो ना कि वो पर्सन ऐसा हो कि वो आपको वापस दे सकता है या नहीं, राइट। ओके, हाँ जी, इज देयर एनी डाउट, any discussion going on there? No? Okay. Next we have financial intermediaries. So they act in between two financial institutions to make the entire financial system more stable. तो दो financial system, दो और दो से ज़्यादा financial institutions के बीच में जो intermediaries act कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं financial intermediaries act? To make it more stable. Okay? Think of a financial intermediary as a middleman. Okay? हम financial intermediary कौन होता है? It's like a broker or a middleman. Okay? Financial intermediaries rarely own the money they hold. उनके पास खुद का पैसा नहीं है, आपसे पैसा लेके उनको दे दिया, उनका पैसा लेके आपको दे दिया और बीच में इंटरेस्ट के थ्रू अर्न कर लिया. They don't have their own money. Banks are also intermediaries. Okay? Rather, these businesses and organizations move funds from one part of the financial system to the next. So, what is the role of financial intermediary? कि वो एक part से पैसा दूसरे part तक पहुंचा रहे हैं. They make the flow of funds, they regulate the flow of funds in the economy. ठीक है? वो एक जगह से जहाँ पे स्पेयर पैसा है और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं पैसा. ठीक है? This is how they function. बैंक्स आर वन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट. ठीक है, खुद का पैसा नहीं है, एक जहाँ पे स्पेयर पैसा है उनसे पैसा लिया और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उनको पैसा दिया. तो इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी में सबके पास पैसा है, सब अर्न कर रहे हैं. ठीक है, और बैंक भी अर्न कर रहा है, बैंक के पास कोई खुद का पैसा नहीं होता. ओके, देन वी हैव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रेडिंग अ फाइनेंशियल एसेट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेड करने के लिए फाइनेंशियल एसेट में. ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम बिकॉज दे अलाउ वेल्थ टू कीप मूविंग थ्रू आउट द सिस्टम. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं कि दे मेक श्योर दैट द वेल्थ इज मूविंग इन द इकोनॉमी. चेक्स, bonds, certificates of deposit, stock trade, stock options, these are all examples of financial instruments. तो ये क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. दैट सपोज आपने कोई शेयर्स खरीदे तो वो क्या है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. आपको एक्चुअली कोई थोड़ी ना शेयर दे रहा है, देयर इज नथिंग फिजिकल यू आर गेटिंग, है ना. इट इज़ लाइक यू आर गेटिंग सम ओनरशिप राइट इन दैट कंपनी फॉर द मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन अ सर्टेन कंपनी. ठीक है, तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. कंपनी और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि आपके पास इतने शेयर्स हैं उस कंपनी के. ओके, देन वी हैव फाइनेंशियल मार्केट्स. अ फाइनेंशियल मार्केट इज एनी मार्केट प्लेस, physical or virtual, where financial instruments can be traded between people and financial institutions. We have discussed this. Stock market is a financial market. और कौन सी मार्केट्स होती हैं, रियल एस्टेट मार्केट, बॉन्ड मार्केट, कमोडिटीज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दीज आर ऑल्सो द फाइनेंशियल मार्केट्स. ओके, मनी क्रिएशन. फाइनेंशियल सिस्टम रिलाई ऑन मनी सर्कुलेटिंग थ्रू देम. फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, बिकॉज ऑफ द मनी जो सर्कुलेट हो रही है. ठीक है, अ गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस न्यू मनी टू द मार्केट बाय प्रिंटिंग इट. अब गवर्नमेंट हैज़, आरबीआई हैज़ द पावर कि वो और मनी इशू कर दे, इंट्रोड्यूस कर दे मार्केट में, या विड्रॉ कर ले. दे हैव द पावर. ओके, इन यूनाइटेड स्टेट्स द फेडरल रिजर्व मेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ मनी. तो जैसे यहाँ पे कौन करता है, आरबीआई, वहाँ पे कौन करता है, फेडरल रिजर्व. ओके, different financial systems may have different forms of money creation.
but there must be an adequate amount of money circulating to keep the system going. अब different financial system में different forms of money creation होते हैं, ठीक है, हर किसी के पास different authority है हर market में, लेकिन there has to be enough money circulating in the market, otherwise जो financial system है वो work नहीं कर पाएगा smoothly, ठीक है. Okay. Next we have price discovery. It is the process of setting a price for goods, services or even financial instruments. तो price discovery क्या है? It is a process कि एक चीज़ का कितना price होगा, ठीक है, एक सर्विस का कितना प्राइस होगा, उसे बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी. ओके. इट इज़ बेस्ड ऑन अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स सच एज सप्लाई एंड डिमांड. किस पे बेस्ड होता है ये? सप्लाई एंड डिमांड. ये तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा. क्या पढ़ा है? कैसे होती है प्राइस डिस्कवरी, बताओ. जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस क्या होता है? बढ़ जाता है. और जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत कम होती है तो उसका प्राइस क्या होता है? ठीक है. ऐसा क्यों होता है? अगर हमें किसी चीज़ का प्राइस बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? सप्लाई कम कर देंगे, उसकी शॉर्टेज क्रिएट कर देंगे, है ना. तो क्या होगा? उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. और अगर हमें किसी चीज़ का प्राइस बहुत कम करना है तो क्या होगा? सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा? प्राइस कम हो जाएगा. इज दैट क्लियर? आइटम्स दैट आर अनवांटेड और प्लेंटीफुल ऑफन हैव चीपर प्राइसेस. यही होता है, ठीक है. जो चीज़ें, जो आइटम अनवांटेड हैं, रिक्वायर्ड नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा है मार्केट में, उनका प्राइस क्या होता है? कम होता है, ठीक है. Although it may not always seem this way to consumers, price discovery is a collaborative effort between buyers and sellers. तो प्राइस डिस्कवरी है जो, वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है बायर्स का और सेलर्स का. बहुत कुछ बायर्स के हाथ में है और बहुत कुछ सेलर्स के हाथ में, राइट. दोनों के पास पावर होता है या नहीं होता, है ना. Okay, sellers must price their goods in order to make a profit and buyers must be willing to pay that price. Sellers को ऐसा प्राइस रखना चाहिए जो, जिससे वो रीजनेबल भी हो और उनको प्रॉफिट भी अर्न हो जाए, ठीक है. और ऐसा प्राइस जो बायर्स विलिंग है देने को. अनरीजनेबल प्राइस रखेंगे तो क्या होगा? डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, है ना. तो इट शुड बी अ रीजनेबल प्राइस विथ प्रॉफिट. ओके. Okay, next is nature and role of financial intermediaries. So, financial intermediaries serve as middlemen for financial transactions generally between banks or funds. Middlemen की तरह work करते हैं ये, ठीक है. A non-bank financial intermediary does not accept deposits from the general public. तो जो बैंक है वो तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है पब्लिक से, लेकिन जो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, they cannot accept deposits from the public. Okay, they don't have the rights. Okay, the intermediary may provide factoring, leasing, insurance plans or other financial services. So these are the kind of services which we will study in detail in the last unit. Okay, the overall economic stability of a country may be shown through the activities of financial intermediaries and the growth of financial services industry. तो जो overall stability है एक country की, वो कैसे show होती है? Through the activities of financial intermediaries and the growth of financial service industry. Financial intermediaries move funds from parties with excess capital to parties needing fund. ये पॉइंट क्लियर है सबको? जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनसे जिनको रिक्वायरमेंट है उन तक पैसा पहुंचाने का काम है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का. ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. कोई बेनिफिट है उनका? आप बताइए, व्हाट इज द बेनिफिट?
फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या होते हैं समझ आ गया सबको? ठीक है. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज? यू आर इन 6th सेमेस्टर. बताइए. कोई बेनिफिट नहीं है. अर्न कर सकते हैं ब्रोकरेज या फिर जो भी वो है. ब्रोकरेज ब्रोकरेज अर्न कर सकते हैं. वो आपको है बेनिफिट, इंटरमीडिएट. वो उनका बेनिफिट है. ओके. आपको क्या बेनिफिट है? हम इजीली ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक्स एंड पार्टिसिपेंट्स. सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि जब आपको रिक्वायरमेंट है पैसे की तो यू गेट द मनी, यू हैव द ऑप्शन टू गेट द मनी. सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है. ठीक है. देखो, थ्रू अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी सेवर्स कैन पूल देयर फंड्स enabling them to make large investments which in turn benefits the entity in which they are investing. अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या करते हैं, आपने कुछ पैसा दिया, आपने कुछ पैसा दिया, आपने कुछ पैसा दिया, सबका पैसा पूल करके वो एक जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा ले लिया. आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास थोड़ा सा पैसा है, तो छोटे 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 फंड सबसे लेके एक पूल ऑफ फंड्स बना के इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो उससे क्या होगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा और जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको भी बेनिफिट हो रहा है. ठीक है. लाइक म्यूचुअल फंड्स में यही होता है ना. ओके. एट द सेम टाइम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज पूल रिस्क बाय स्प्रेडिंग फंड्स अक्रॉस अ डाइवर्स रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स. तो वो डाइवर्स कैसे कर रहे हैं? डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? क्या होता है मतलब इसका? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन वन अमाउंट, मतलब इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग माई ऑल फंड्स इन वन इन्वेस्टमेंट, मैंने क्या करा, थोड़ा अमाउंट अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट्स में कर दिया. तो उससे क्या होगा, सपोज अगर एक जगह पर मुझे लॉस हो गया तो दूसरी जगह पे मैं उसको हेज कर लूँगी. ठीक है. तो एक जगह पे अगर ज़्यादा रिस्क है तो दूसरी जगह पे रिस्क बहुत कम है. ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है, मैं दिस मीन्स डाइवर्सिफिकेशन. ओके. तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ऑल्सो प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑन सेवरल फ्रंट्स. तो आपके पास कम पैसा है तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. ठीक है. For instance, they have access to economies of scale to expertly evaluate the credit profile of potential borrower. सबसे पहले क्या है, उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. क्यों? उनके पास ज़्यादा फंड्स हैं, बहुत सारे लोगों से ले लेके उन्होंने बहुत सारे फंड्स लेने हैं, तो दे हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जैसे बल्क में कोई डील करता है ना, वो उस तरह से. एंड दे हैव एक्सपर्टीज टू इवेल्युएट द क्रेडिट प्रोफाइल ऑफ पोटेंशियल बोरोअर्स. तो क्रेडिट प्रोफाइल का क्या मतलब है, जो बोरोअर है, हाँ, उनका क्रेडिट प्रोफाइल इवेल्युएट करने की एक्सपर्टीज भी होती है उनके पास. ओके. एंड कीप रिकॉर्ड्स एंड प्रोफाइल्स कॉस्ट इफेक्टिवली. और उसके अकॉर्डिंग बिकॉज दे हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो ये एक्सपर्टीज और कॉस्ट इफेक्टिवली दे कैन वर्क. ठीक है. Last, they reduce the cost of many financial transactions an individual investor would otherwise have to make if the financial intermediary did not exist. तो अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे तो बहुत सारी कॉस्ट होती हैं जो आपको बियर करनी पड़ती हैं, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी वो कॉस्ट रिमूव हो जाती है या फिर मिनिमाइज हो जाती है. ओके. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. प्लीज़ राइट सम पॉइंट्स सो दैट यू रिमेंबर. मैं तो बोलती रहूँगी पर आपको कुछ याद नहीं रहेगा. ठीक है. प्लीज़ राइट फ्यू पॉइंट्स ओनली, डोंट कॉपी एवरीथिंग, बट द की पॉइंट्स विच यू हैव अंडरस्टूड और विच यू वांट टू, विच यू रिमेंबर.
I hope you have understood everything till here. Is there anything, any doubt? Where is the attendance sheet? Have you all signed? Done? Okay. चलिए. Then meaning of financial markets. Financial market is referred to space where selling and buying of financial assets and securities take place. So ऐसी कोई जगह जहाँ पे buying and selling of financial assets या securities हो रहा है उसे हम financial market बोलते हैं. It allocates limited resources in the nation's economy. जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट होते हैं, इकोनॉमी के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट होते हैं इन फाइनेंशियल मार्केट एंड ऑल्सो इट सर्व्स एज एन एजेंट बिटवीन इन्वेस्टर एंड कलेक्टर बाय मोबिलाइजिंग कैपिटल बिटवीन देम. तो जो कलेक्टर है और जो इन्वेस्टर है उनके बीच में कैपिटल फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. इन अ फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट अलाउज इन्वेस्टर्स टू परचेज एंड ट्रेड पब्लिकली कंपनीज शेयर. एक फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक मार्केट जो होती है वो अलाउ करती है इन्वेस्टर्स को कि ट्रेड करें या परचेज करें कंपनीज के शेयर पब्लिकली. ओके. द इशू ऑफ न्यू स्टॉक्स आर फर्स्ट ऑफर्ड इन प्राइमरी स्टॉक मार्केट. अब जो स्टॉक मार्केट होती है वो उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टॉक मार्केट होती है. ठीक है. तो जो न्यू स्टॉक्स होते हैं वो सबसे पहले कहाँ इशू होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी स्टॉक मार्केट में. एंड स्टॉक सिक्योरिटीज ट्रेडिंग मतलब जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स है वो कहाँ पे ट्रेड होते हैं, इन द सेकेंडरी मार्केट. ओके. प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन एन इकोनॉमी. इसके इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले it makes it easy for buyers and sellers to trade their financial holdings. मुझे कुछ शेयर्स बेचने हैं या मुझे खरीदने हैं तो मैं कहाँ जाऊँगी? फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है. With the help of financial market, it is easier for anyone to trade their financial assets. The stock market is just one type of financial market. Stock market जो है, it is an example of financial market. ठीक है. Financial markets are made by buying and selling numerous types of financial instruments. तो financial markets कैसे बनती हैं? They are made up of
when you buy, sell or trade different types of financial instrument, जिसमें bond market भी होता है, currencies market, foreign exchange market भी होता है, equity market भी होता है, derivative market भी होता है. तो these are all financial markets. Financial market rely heavily on informational transparency to ensure that the markets set prices that are efficient and appropriate. तो किस पे रिलाई करती है वो? इंफॉर्मेशन, डेटा, ठीक है, उस पे वर्क करती है पूरी फाइनेंशियल मार्केट. टू एंश्योर जो मार्केट का प्राइस है वो एफिशिएंट हो और अप्रोप्रिएट हो. वो कैसे डिफाइन होता है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है, क्या कितनी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास. ओके. The market prices of securities may not be indicative of their intrinsic value because of macroeconomic forces like taxes. तो market prices जो होते हैं ना securities के, ज़रूरी नहीं है कि वो indicate कर रहे हैं उनके actual worth, but it is because of some taxes. बहुत सारे ऐसे factors हैं जो आपके control में नहीं है, जिनकी वजह से prices fluctuate होते हैं. Okay? Okay. Now role of financial market. Can you give me a minute, please? Okay, so financial markets have a crucial role in our economic system. They allow global commerce to transact smoothly and continuously with no breaks. तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये नहीं है कि सिर्फ नेशनल उसमें हम वर्क कर रहे हैं, इट इज़ वर्किंग ऑन अ ग्लोबल लेवल. ठीक है. ओके, डिस्कवर एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स. अब ये दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसमें कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बॉन्ड मार्केट, कमोडिटीज मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट. तो इतने सारे टाइप की फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं. ओके. टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. सबसे पहले ओवर द काउंटर मार्केट, OTC. ठीक है. इसका क्या मतलब होता है? दे मैनेज द पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ नॉट लिस्टेड ऑन द नैस्डैक, विच इज़ द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. तो ये क्या कर रहे हैं? दे मैनेज पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ नॉट लिस्टेड ऑन अ ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. तो ऐसे जो ट्रेड्स हो रहे हैं वो कहाँ पे होते हैं? ओवर द काउंटर पे. ठीक है. The OTC market deals with companies that are usually small. ऐसी companies में deal करती है जो small हैं, can be traded cheaply and have less regulations. ठीक है. वहाँ पे जो proper formal stock exchanges हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा regulations हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी companies deal करती हैं. ये उनके लिए over the counter, जहाँ पे जो small companies हैं जो relatively cheap उसमें deal करती हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा regulations नहीं हैं. Okay. Next we have bond market. It is a market, financial market where investors loan money or on bonds as security for a set period of time at a predefined rate of interest. तो bond market में क्या होता है? Rate of interest हमेशा याद रखना है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे investors लोन दे रहे हैं मनी का ऑन बॉन्ड्स. ठीक है. और किस एज सिक्योरिटी. बॉन्ड्स क्या है? उनकी सिक्योरिटी. ठीक है. और किसके लिए होता है? वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. बॉन्ड्स आर इशूड बाय कॉर्पोरेशंस. हमने पैसा दिया, उन्होंने बॉन्ड दिया. ठीक है. तो बॉन्ड्स क्या हो गए? एक तरह की सिक्योरिटी है. ओके.
Bonds are issued by corporations, states, municipalities and federal governments across the world. ठीक है, मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे बॉन्ड मिल रहा है एक स्पेसिफाइड पीरियड, टाइम पीरियड के लिए एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. Then next we have money markets. They trade high liquidity and short maturities and lend securities that mature in less than a year. तो जब मनी मार्केट वर्ड आएगा तो आपको हमेशा यू नीड टू रिमेंबर दैट दे आर शॉर्ट टर्म, दे आर फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स. ठीक है, ये इनकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है बिकॉज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मेच्योरिटी होती है लेस देन 1 ईयर. तो हाईली लिक्विड का मतलब क्या होता है, इनको कभी भी बेच के पैसा ले लो आप. ठीक है, शॉर्ट मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर एंड लैंड सिक्योरिटीज दैट मेच्योर, और जो सिक्योरिटीज है वो मेच्योर होती है इन लेस देन 1 ईयर. ओके. नेक्स्ट इज डेरिवेटिव्स मार्केट. They trade securities that derive their value from their primary asset. So एक डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में, जिसकी वैल्यू आप किसी और एसेट के बेस पे फिक्स करते हो. ठीक है, सपोज दो पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा ऑन द डेट ऑफ 25 फेब को, जो गोल्ड का प्राइस होगा ना उसके बेसिस पे इसका इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिसाइड होगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी एसेट है, जिसके अंडरलाइंग एसेट है, वो क्या है, गोल्ड. ठीक है, और हम उसका प्राइस कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जो उस टाइम पे होगा. ठीक है, तो द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज रेगुलेटेड बाय द मार्केट प्राइस. अब वो जो गोल्ड का प्राइस जो उस टाइम पे होगा वो ना आपके कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में, वो जो भी होगा हम उसके बेसिस पे अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे. राइट. So the derivative contract value is regulated by the market price of the primary item in the derivatives market, including futures. ये सब क्या हैं, these are the types of derivatives. Future, option, forward, swap, ये types of derivatives. Okay. Next we have forex market, that is the foreign exchange market. It is the market where investors trade in currencies, जहाँ पे हम currencies में डील करते हैं. Okay? In the entire world, it is the most liquid financial market. पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा हाईली लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है, बिकॉज यहाँ पे यू कैन ईजिली कन्वर्ट योर फाइनेंशियल एसेट इनटू कैश वेन एवर यू वॉन्ट. ओके, इज इट क्लियर? प्लीज राइट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ मार्केट लिखिए ज़रा इसको. वी कैन जस्ट पॉज इट हियर. Okay, so next is functions of financial market. First is it mobilizes savings by trading in the most productive method. तो जो हमारी savings हैं उसको सबसे best productive use में लाने का work करती है, सबसे important function. Next is it assists in deciding the securities price by interaction with the investors एंड डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट. तो सिक्योरिटी के प्राइस को रेगुलेट करने में बहुत बड़ा रोल होता है फाइनेंशियल मार्केट का, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन विद द इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट इज इट गिव्स लिक्विडिटी टू बार्टर्ड एसेट्स. सो लिक्विडिटी, जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको हम कभी भी जाके बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं एंड वी कैन गेट द कैश. तो इट इज़ पॉसिबल थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स ओनली. Less time consuming and cost effective, as parties don't have to spend extra time and money to find potential clients to deal with securities. Less time consuming और cost effective क्यों है कि मुझे जाके अपनी सिक्योरिटी को बेचने के लिए लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा. They are all available there only. ठीक है ना, जिसको खरीदना है वो भी वहीं है, जिसको बेचना है वो भी वहीं है. ठीक है, they are all on the same platform. It also decreases cost by giving valuable information about the securities traded in the financial market. तो cost कैसे decrease करते हैं? By giving valuable information. Stock market जो है वो basically work करता है on the basis of information data, है ना? तो उससे क्या होता है, अगर जितने ज़्यादा आप informed हैं उतना आप अच्छे से deal कर पाएंगे वहाँ पे. Okay? Next is structure of financial system.
ओके ये हम नहीं पढ़ रहे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस. ओके नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया. तो जैसे हमने पहले बात करी थी इसके बारे में, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है. द फाइनेंशियल सिस्टम इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोवाइडर्स. Financial institutions sell their services to household, businesses and government. They are the users of the financial services. तो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज के यूजर्स हैं वो कौन है? हाउसहोल्ड्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं. फाइनेंशियल सर्विसेज भी तो हम यूज़ कर रहे हैं. द बाउंड्रीज बिटवीन दीज सेक्टर्स आर नॉट ऑलवेज क्लियर कट. In case of providers of financial services, although financial system differ from country to country, there are many similarities. तो मतलब एक clear demarcation नहीं है इनके बीच में, because country to country differ करता है कि who are providing the financial services. So कुछ central banks, financial institutions ये common है. ठीक है. तो इसलिए but it is divided into two sectors, organized sector and unorganized sector. ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा रेगुलेशंस होती हैं और ज़्यादा जो वैलिडेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. ओके. अब पढ़ेंगे हम ऑर्गेनाइज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में. सो इट इज़ अ क्रिटिकल एलिमेंट इन अ वेल फंक्शनिंग इकोनॉमी. तो जितना अच्छा ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम होगा उतनी अच्छी डेवलपमेंट और वेल फंक्शनिंग इकोनॉमी होगी. Organized financial system comprises of an impressive network of banks. ठीक है. जो banks का network है वो इसमें include होता है. Other financial and investment institutions and a range of financial instruments which together function in fairly developed capital and money market. तो ये सारे components, जितने अच्छा इन सारे components का network है उतना अच्छा organized financial system है. Okay. Short term funds are mainly provided by the commercial and cooperative banking structure. जो short term funds होते हैं वो कौन provide करता है? commercial banks या फिर cooperative banks. 9/10 of such banking business is managed by 28 leading banks which are in the public sector. तो क्या हो रहा है? जो मेजर बिजनेस है वो पब्लिक, बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं. 28 हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं. इट कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो. ओके. इट्स एन ओल्ड फिगर. विद अराउंड 2/3 शेयर इन द टोटल एसेट्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम, बैंक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो टोटल 2/3 टोटल शेयर जो है वो बैंक्स का है. तो बैंक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. बैंक के बिना एक फाइनेंशियल सिस्टम वर्क ही नहीं कर सकता. ठीक है. दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ फाइनेंशियल सिस्टम. Organized financial system comprises of banking, cooperative system, development banking system जिसमें public और private sector, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. Money markets, financial companies and institutions and microfinance institutions. तो ये सब क्या हैं? ये सब components हैं organized financial system. ठीक है. Okay. Next is important sources of surplus in an economy. Surplus क्या होता है? Excess. Okay. तो ऐसे कौन से sources हैं excess या surplus funds के एक economy में? They tend to be households, but sometimes business enterprises, government as well as foreigners also sometimes have excess funds and so they also lend them out. तो हाउस होल्ड्स के पास तो हैं ही, लेकिन बिजनेसेस, गवर्नमेंट, बहुत सारे फॉरेनर्स, इनके पास भी सरप्लस फंड्स होते हैं और वो उसको लेंड करते हैं. ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोरोअर्स, स्पेंडर्स आर वेरियस बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल. तो बोरोअर और स्पेंडर्स, बोरोअर्स कौन है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट. ठीक है. एट डिफरेंट लेवल, उनके भी डिफरेंट लेवल्स हैं. Okay. However, at times the households and foreigners may also borrow to finance their spendings. कभी-कभी individuals भी loan लेते हैं, but they are not a major part of borrowers. Okay. The finance could be of two types,
डायरेक्ट फाइनेंस एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस. डायरेक्ट फाइनेंस में क्या होता है, इन दिस केस द बोरोअर डायरेक्टली बोरोज फंड्स फ्रॉम द लेंडर इन द फाइनेंशियल मार्केट बाय सेलिंग देम सिक्योरिटीज विच आर क्लेम ऑफ द बोरोअर्स फ्यूचर इनकम. तो इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट फाइनेंसिंग में बोरोअर सेल कर रहा है अपनी सिक्योरिटी डायरेक्टली लेंडर को. ठीक है, सेल करी अपनी सिक्योरिटी और पैसा ले लिया. इनडायरेक्ट फाइनेंस में क्या हो रहा है, इन दिस केस द रोल ऑफ चैनलाइजिंग द फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू बोरोअर्स इज डन थ्रू बैंक्स. देयर इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट बिटवीन. तो क्या हो गया यहाँ पे डायरेक्टली मैंने बोरोअर से डील नहीं करा है, मैंने एक इंटरमीडिएट, मैंने बैंक के थ्रू डील करा है. ठीक है, बैंक इज द पर्सन जिससे मैं डील कर रही हूँ, बैंक के थ्रू आई एम गेटिंग द लोन. ओके, तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट फाइनेंस. It is important, there are some points, it is important to understand that securities are assets for persons, firm who buys them, but liabilities, debts for individuals, firms that sells them. तो securities क्या है, assets हैं जो उनके लिए जो buy कर रहा है. ठीक है, मैंने बाय करा उसे, तो इसका मतलब क्या है, मैंने कुछ इन्वेस्ट किया, मेरे पास स्पेयर पैसा था, मैंने कंपनी में इन्वेस्ट करा, मैंने उसका शेयर बाय कर लिया, तो मेरे लिए क्या हो गया, वो एक एसेट. ठीक है, लेकिन जो उनको सेल कर रहा है या जो इशू कर रहा है कंपनी, अगर वो इशू कर रही है अपना शेयर, तो उसके लिए क्या है, ये एक लाइबिलिटी है. ठीक है, क्योंकि उसको क्या करना होगा, मैंने, उसका मतलब क्या है कि मैंने वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करे, अब उनकी ड्यूटी है कि कुछ रिटर्न दे, तो उनके लिए क्या हो गया, ये लाइबिलिटी. तो ये बात हमेशा याद रखनी है. समझ आई, मेरा पॉइंट समझ आया? और शुड आई एक्सप्लेन अगेन? देखो, मेरे पास स्पेयर पैसा है, मैंने सपोज रिलायंस के शेयर्स खरीदे. ठीक है, तो जो पैसा मैंने उनको दिया, तो वो मैंने क्या करा, मैंने अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट किया वहाँ पे, है ना, इन्वेस्ट किया मैंने रिलायंस के शेयर्स में, तो उन्होंने, अब मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है कि मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा, तो मेरे लिए वो क्या हो गया, एक एसेट जिससे मुझे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है. लेकिन उनके लिए वो क्या है, लाइबिलिटी, कि उन्हें मुझे अब रिटर्न देना है, मैंने किसी का पैसा लिया, मुझे उसको देना है रिटर्न, तो उनके लिए इट इज़ अ लाइबिलिटी. नेक्स्ट इज, वन में आस्क व्हाई इज इम्पॉर्टेंट टू चैनलाइज द फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू बोरोअर्स. अब आपसे पूछा जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि पैसे को, मनी को चैनलाइज करो सेवर्स से बोरोअर्स. क्यों करते हैं हम ऐसा? यूज़ कर सके, जिसको रिक्वायरमेंट है पैसा वो उसको यूज़ कर सके, और एक फ्लो ऑफ मनी रहे, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करेगा हमारा, वो इसी बेसिस पे वर्क करता है. ओके, सो आंसर क्या है, पीपल हु हैव सरप्लस फंड्स आर जनरली नॉट द पीपल हु हैव आइडिया अबाउट द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. मेरे पास सरप्लस फंड्स है, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको रख लेती हूँ संभाल के, है ना. तो जनरली इट इज़ अ कॉमन थिंग कि जिन लोगों के पास सरप्लस पैसा है ना, दे डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट इट, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ फाइनेंशियल सिस्टम, सो दैट स्पेयर पैसा जिनको रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचे और सबका बेनिफिट हो. जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिल गया, जिसके पास स्पेयर पैसा है उसको रिटर्न मिल गया, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है. ठीक है, तो इसमें सबका बेनिफिट है. In the absence of financial market, the savers and borrowers would find it very hard to transfer funds from a person who has surplus funds but does not have the profitable opportunities to invest. तो अगर यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट नहीं होगी तो क्या होगा, यही सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि किसके पास ज़्यादा पैसा है, सरप्लस फंड्स है, वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है. उसके बाद ये बहुत मुश्किल है कि उस चीज़ को, सरप्लस फंड्स को हम कैसे इन्वेस्ट करें. अगर सपोज़ किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं है या उसको नहीं पता, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा. तो फाइनेंशियल मार्केट जो है, ये मतलब जो ये फाइनेंशियल सिस्टम है, ये एक मीडियम है इस चीज़ को रेगुलेट करने का. ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स आर एसेंशियल इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी बिकॉज एवरीवन इज बेनिफिटिंग थ्रू देम. तो क्या हो रहा है कि सबकी मनी में इंक्रीज हो रहा है, सबकी मनी वैल्यू बढ़ रही है, सबके पास वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, सबकी वेल्थ बढ़ रही है. ओके, फाइनेंशियल मार्केट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्शन,
एफिशिएंसी, कंज्यूमर वेलबींग, वो कैसे हो रहा है? बिजनेसेस के पास पैसा आ रहा है तो वो ना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, तो कंज्यूमर को क्या बेनिफिट हो रहा है? उनके पास दे हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। अगर आपको आज एक कोई भी आइटम खरीदनी है तो आपके पास कम से कम 10 ब्रांड्स हैं उसके लिए, है ना? तो यू हैव अ चॉइस, यू कैन चूज द बेस्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप कितना पैसा देना चाहते हो, किस क्वालिटी में चाहिए, तो दे आर वेरियस क्वालिटीज़। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि बिजनेसेस ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, सेलर्स ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेलर्स जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको उनका हर तरह का प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उनके पास पैसा आ रहा है। आप लोगों के पास चॉइस है इतनी, तो एज अ कंज्यूमर यू आर गेनिंग। आप चाहे बेस्ट क्वालिटी लें या एवरेज क्वालिटी लें, इट इज़ अप टू यू, ठीक है? तो हर किसी का, सोसाइटी का भी वेलफेयर हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हर तरह के लोगों, कोई भी डिप्राइव्ड नहीं है। अगर कोई ज़्यादा अच्छा अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बाय कर रहा है, पर कोई डिप्राइव तो नहीं हो रहा ना, समझ रहे हो आप? तो इसमें सबका बेनिफिट है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, सिटी बैंक, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक्स जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स है। देन डेवलपमेंट बैंक्स जैसे नबार्ड, सिडबी, IDBI, ये सब क्या है? डेवलपमेंट बैंक्स हैं जो एक पर्टिकुलर उसको फोकस करते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फोकस करते हैं। जैसे नबार्ड क्या करता है? सिर्फ फार्मर्स को फोकस करता है ना? तो सबका क्या है? सिडबी क्या करता है? इंडस्ट्रीज को फोकस करता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? हर किसी के लिए एक फोकस्ड पॉइंट है, एक फोकस्ड कम्युनिटी है जिसको वो फोकस करे, इसलिए उनको उनकी डेवलपमेंट के लिए बैंक्स बने हैं। तो ये होते हैं डेवलपमेंट बैंक्स, ओके? Next is financial advisors or brokers. Then we have insurance companies जैसे AIG, Tokio, PLS, ये सब क्या है? इंश्योरेंस कंपनीज है। तो ये क्या कर रहे हैं? रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं, राइट? आपको जो भी रिस्क है जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, आप उसको कवर करना चाहते हो, तो वो रिस्क मैनेज करना चाहते हो, वो किसके थ्रू करते हो? आप इंश्योरेंस के थ्रू। आपको लगता है कि आई एम द ओनली पर्सन अर्निंग इन माई फैमिली, मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, तो आप क्या करते हो? लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हो, राइट? तो वो क्या होता है? वो आपको जो रिस्क ऑफ लाइफ है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना, आप कंट्रोल कर सकते हो, बट येस जो आपकी अनसर्टिनिटी है कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, उसको वो मैनेज कर लेते हैं। तो यू आर व्हाट यू आर डूइंग? यू आर मैनेजिंग द रिस्क, ओके? ओके, नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, SBI, देयर आर सो मेनी म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? थोड़ा पैसा लेके सबसे एक पूल ऑफ फंड क्रिएट करके एक डाइवर्सिफाइड उसमें एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको रिटर्न्स देते हैं, ठीक है? देन पेंशन फंड्स होते हैं जैसे PPF होता है, EPF होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो दीज आर द पेंशन फंड्स। Next we have building societies, HDFC, HUDCO, etc. Then credit unions. तो ये सब types of financial institutions हैं, intermediaries हैं। लिखो एक बार इसको, please write some of them. Okay, now the summary of whatever we have read today. We found that the financial system, among other things, help to provide liquidity and reduce risk. अब आप मुझे बताएंगे how does it provide liquidity? How does it provide financial system? How does it provide liquidity? What is liquidity? हाँ, तो फिर liquidity कैसे provide करता है कि whenever we need cash, we can get cash by selling our securities or our financial assets, ठीक है? And how does it reduce risk? We have diversification से और risk management से, okay? Next is structural reform of the financial sector, executive summary. एक सेकंड, नहीं, financial system is critical to the functioning of the economy as a whole and banks are central to the financial system.
तो क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर की वर्किंग के लिए, एक इकोनॉमी में उसकी वर्किंग के लिए फाइनेंशियल सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है बैंक्स और जो कंपोनेंट्स हैं उसके, ठीक है। देन वी हैव, इट प्रोवाइड सब्सटैंशियल एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंसेस एंड सर्व्स 3 मेन पर्पसेस। तो ये एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंसेस भी प्रोवाइड कर रहा है, बट उसके साथ साथ जो 3 मेन फंक्शन है वो क्या है, एक तो क्रेडिट प्रोविजन, ठीक है। क्रेडिट प्रोविजन मतलब इट फ्यूज द इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय अलाउइंग बिजनेसेस टू इन्वेस्ट बियॉन्ड देयर कैश ऑन हैंड। मेरा एक बिजनेस है, लेकिन मेरे पास जो फंड्स हैं वो इनफ नहीं है फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट विच आई थिंक इज़ वेरी प्रॉफिटेबल फॉर मी। तो मेरे पास जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरे पास कैश इन हैंड है, उससे बियॉन्ड जाने की एबिलिटी है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, बिकॉज ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस अवेलेबल टू मी, ठीक है ना। मैं जाके लोन ले सकती हूँ एंड आई कैन अरेंज कैश फॉर माई न्यू प्रोजेक्ट, फॉर माई ग्रोथ, ठीक है। मुझे घर खरीदना है तो उसके लिए वी हैव वेरियस एजेंसीज, वेरियस इंटरमीडिएट्स जो लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या है, मैं अपनी ग्रोथ पे फोकस कर सकती हूँ विच इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी। मेरी कैपेसिटी से बढ़कर मैं लोन लेकर अपना काम कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, इन शॉर्ट वी आर ग्रोइंग, इट इज़ फॉर द ग्रोथ। Banks directly provide a substantial amount of credit in the US, but unlike in almost any other economy, financial markets are the ultimate providers of most credit. Banks भी provide करती है, US की बात करें, इंडिया की बात करें, तो banks तो important है ही, लेकिन financial market और other components, because of all the components, it is not possible कि credit create हो जाए, ठीक है। सारे कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सिस्टम के। बैंक्स एंड देयर एफिलिएट्स, ओके, नेक्स्ट इज लिक्विडिटी प्रोविजन। लिक्विडिटी प्रोविजन में क्या है, बिजनेसेस एंड हाउस होल्ड्स नीड टू हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड नीड्स फॉर कैश। एकदम से कोई ऐसा कुछ आ गया, अर्जेंसी आ गई, इमरजेंसी आ गई, आग लग गई, चोरी हो गई, तो क्या करोगे आप। तो देयर इज़ अ प्रोविज़न कि आप उस टाइम पे कैश अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी प्रोविज़न। आप अपनी चीज़ें बेच के या फिर डील करके यू कैन क्रिएट कैश, यू कैन गेट कैश। बैंक्स आर द मेन डायरेक्ट प्रोवाइडर्स ऑफ लिक्विडिटी, बोथ थ्रू ऑफरिंग डिमांड डिपॉजिट्स दैट कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम। आप बैंक में जो पैसा डालते हो, वो जो आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालते हो, अगर आप उसको एफडी नहीं कराते तो आप उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, है ना आपके पास ऑप्शन ये। तो वो किस लिए होता है, वो इसीलिए होता है इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट आप कभी भी जाके उसको विड्रॉ कर लें, ठीक है। और जब तक ज़रूरत नहीं आ रही आप उस पर इंटरेस्ट लें, ओके। नेक्स्ट इज बैंक्स एंड देयर एफिलिएट्स आर एट द कोर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स, offering to buy and sell securities and related products at need in large volumes. So banks और उनके जो affiliates हैं वो core हैं financial market का, they offer to buy and sell securities and products when they are needed. The role is particularly important given the dominance of markets but is under appreciated. Banks का role बहुत important है financial system में, but yes उनका जो रोल है वो जैसे जैसे नेटवर्क ऑफ बैंक स्ट्रॉन्ग होता है, नेटवर्क ऑफ कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ज़्यादा मेजर रोल होता है किसी भी उसका। अगर एक इकोनॉमी में बैंक्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है तो उसका फाइनेंशियल सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ओके। देन वी हैव रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज। फाइनेंसेस allows businesses and households to pool their risk from exposure to financial market एंड कमोडिटी रिस्क प्राइसेस। तो जो फाइनेंस है वो अलाउ करता है बिजनेस को एंड हाउस होल्ड को कि अपने रिस्क को मैनेज कर लें थ्रू इंश्योरेंस, ठीक है, अपने रिस्क को पूल कर ले। जब आप इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस लेते हो, फायर इंश्योरेंस लिया, तो जो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको फायर का रिस्क लगता है ना, वो उस चीज़ में पैसा डाल रहे हैं, यू पे सम अमाउंट ऑफ मनी, है ना, ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, और उसके बाद इन केस ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपका वो पैसा वापस मिल जाता है आपको, यही होता है ना, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ अ पूल ऑफ रिस्क।
जो सेम रिस्क के लोग हैं जिनको लगता है हमें इस चीज़ का रिस्क है, वो उन लोगों को पूल करके उनके फंड्स उनको आइडेंटिफाई कर, ठीक है। मच ऑफ दिस इज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स थ्रू डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे बैंक्स उसको डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के थ्रू भी प्रोवाइड करते हैं। एंड ये छोड़ दीजिए, ओके, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। Okay, then now we have completed the first unit, then we will start the second unit in the next class. So now tell me, is there any doubt, anything you have not understood in today's class? Is it clear? समझ आ गया सारा? Okay, so that is all for today. I'll see you in the next class.